और टिश्यू दोनों के प्रैक्टिकल, ठीक है। सो आपको अब एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और मैंने कहा था चैप्टर 2 आपको याद। 9 सुपर 30 की क्लास है। हाँ मैम बट प्रशांत सर तो कह रहे थे कि 9th 10th के नहीं है अभी यूनिट टेस्ट। जो भी हो पर आपको तैयार रहना है, ठीक है। आपके अगर अभी नहीं होंगे तो बाद में तो होंगे, थोड़े दिन बाद होंगे, तो आपको याद करना है जो भी सिलेबस आपका। और उसी बीच मैंने आपको एक पोर्टफोलियो का डॉक्यूमेंट शेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो में जो आपने इंग्लिश का बनाया था उसी में आप ऐड कर लोगे, दूसरे सब्जेक्ट रिलेटेड पॉइंट्स भी ऐड कर लोगे, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मतलब आपको एक एक पेज हर सब्जेक्ट का उसमें लिखना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के बारे में आप कौन सी पर्टिकुलर कौन से पोर्शन से, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, तीनों होती है साइंस में। कुछ बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट बायो में होगा, कुछ बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में होगा, तो वो उस हिसाब से अपने उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंट्रीज को फिल करेंगे। इसकी भी एक फाइल बनानी है। हाँ, जो आपने फाइल बनाई थी उसी में ऐड कर लेना है आपको, ठीक है। मैम कैन यू एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन? PowerPoint presentation नहीं, either it will be a Word document or it will be a handwritten file, whichever you have made. तो जिस तरह से भी आपने बनाया है, it should be a document form or it can be a handmade form. Clear? So we were revising the MCQ based questions. Yesterday also we have revised cell के questions हमने revise किए थे, tissues के question हमने revise किए थे, और आपने उसमें देखा था कि there were general questions and they have matching, they can have true false, they can have 4 option choice questions, ऐसे questions। हमें फाइल कब तक बनानी है?
Audible? Whether I'm audible or not, everyone? Yes, ma'am. Okay, so this screen has been shared to you. It is chapter 3, atoms and molecules. And we have started it with the presentations also. PowerPoint से भी हमने इसे start किया था क्योंकि हमारा second chapter completed है, तो हम उसका revision भी कर चुके हैं MCQ के form में, and cell chapter completed है और tissues completed है, तो अब हम third chapter start कर रहे हैं. Clear? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so I want any one of you to read it. Atoms and molecules को एक एक पैराग्राफ करके आप पढ़ोगे. पहले एक स्टूडेंट पढ़ेगा, फिर you will only explain. The one who is reading will only explain that paragraph. जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपने थोड़ा सही से नहीं समझा, वहाँ मैं बताऊंगी. ठीक है? क्योंकि till the laws of constant proportions I have explained already. हमने PowerPoint से explain कर चुके हैं, तो इसी वजह से आपसे मैं explain करने के लिए बोल रही हूँ. Okay? So start. Who will read the first para? Read it. Any one of you can start. Himanshi, Hansika Chaudhary, Muskan. Start it. I don't want to wait. Don't you listen my instructions? What I have told you? Don't you want to do the class? I will end the class right now if you don't want to do the class. And if you want to do the class, then read it. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India, around 500 BC. An Indian philosopher, Maharishi Kanad, postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a time will come when we shall come across the smallest particles, beyond which further division will not be possible. He named these particles Parmanu. Another Indian philosopher, Vakuda Katyayana, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form, which gives us various forms of matter. Okay. So ancient Indian Greek philosopher, जिसके बारे में इसमें बताया हुआ है कि केमिस्ट्री का सबसे पहले किस इंडियन फिलोसोफर ने, महर्षि कनड ने इसको पोस्टुलेट दिया था. डिवाइडिंग मैटर को बोला था पदार्थ, और जिससे हमें स्मॉलर पार्टिकल्स मिलते हैं, और एट लास्ट हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलता है जो उन्होंने परमाणु नाम से बोला था. एंड इट इज द पार्टिकल अबव विच, जिसके बाद और ज्यादा उसकी डिविजन्स नहीं हो सकती. ठीक है? एक और इंडियन फिलोसोफर थे जो जिन्होंने ये कहा, लास्ट लाइंस में लिखा है, कात्यायना नाम के, जिन्होंने बताया कि these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. और ये particles आपस में combine होते हैं और तभी जो matter है वो बना है. ठीक है? आगे पढ़ो. Next paragraph and next student will read. Any one of you can read. First of all, on your videos, I want to see you. On your videos, I want to take attendance. Kushi Sharma is on the video. What about others? Yash, Hansika Chaudhary, Himanshi Yadav, Muskan, on your videos. On your videos, everyone. Yash Sharma. What about else?
Hansika Malik, Hansika Chaudhary, on your videos. Manshi, on your videos. Students, Kashish, on your video. It is an interactive class. It is uploaded on YouTube. You should know that. Okay. And if you will not follow the instructions, then this message will go on the YouTube that the teacher was continuously asking something to do and the students were not responding. On your videos. Muskan, Hansika Malik, Manshi, on your video. Now, Muskan, Yash Sharma can off the videos. I've seen you. पूछ रही हूँ मैं तो चाय दो. मैम ने कहा था सब बच्चे आज लेटेंगे क्लास के अंदर चाय दो, दिमाग खाओ. थोड़ी Hansika Malik. Kashish, your video is not visible. बिल्कुल नीट एंड क्लीन और एक प्रॉपर वर्ड बनने चाहिए कार्तिक से. Hansika Malik. वॉल्यूम तेज कर. मैम क्या बोल रही है सुनाई दे रहा है तुझको? Now you can off your video, turn off your videos now, everyone, and we will be doing the second paragraph. Kashish, आप read करो second paragraph. कशिश Read paragraph. Around the same era. यहाँ से पढ़ना है आपको, ठीक है? Second paragraph पढ़ना है. आपकी आवाज नहीं. Around the same era वाला paragraph पढ़ना है. Read from here. Second paragraph. Read from here. Around the same area, हाँ, सही है, सही पढ़ रहे हो, पढ़ो. Greek the philosopher, Democratic and the Liptus suggested that if we get dividing matter, a stage will come when the particle obtained cannot divide it further. ठीक है, तो उसी टाइम पर जब कात्यायामा और दूसरे कन्नड़ साइंटिस्ट कुछ कर रहे थे, डिस्कवरी बता रहे थे इसके बारे में कि परमाणु होता है और जो मैटर है वो पदार्थ होता है. मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं. वो परमाणुओं से बना है. परमाणु एक दूसरे से जुड़ के बनते हैं. तब और भी साइंटिस्ट थे, वो तो इंडियन साइंटिस्ट है, कन्नड़ ऋषि, महर्षि कन्नड़ और ये कात्यायमा. बट ग्रीक फिलोसोफर्स भी कुछ थे, डेमोक्रिटस और लुसिफस नाम के, जिन्होंने कहा कि जब हम मैटर को डिवाइड करते जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है, एक ऐसा स्टेप आता है जहां पर पार्टिकल्स को और डिवाइड नहीं किया जा सकता. और डेमोक्रिटस ने इसको इंडिविजिबल पार्ट को एटम कहा. ठीक है, दैट मीन्स एटम वो पार्ट है मैटर का दैट इज इनडिविजिबल, विच कैन नॉट बी डिवाइड. ठीक है, all this was based on philosophical concentration and not much experimental work to validate these ideas could be done till 18th century. और ये philosophical considerations पे था. फिलोसफी क्या होती है? जैसे कि कोई भी आप अपने दिमाग से थॉट पैटर्न से सोच के किसी चीज का समझ बनाते हो, वो फिलोसफी. अपनी अपनी सबकी समझ होती है. ठीक है, सबकी अपने अपने एक ही चीज को लेकर सबकी अपनी अपनी आइडियाज होते हैं, वो फिलोसफी होती है. तो ये जो डेमोक्रेटिस और लुसिफस नाम के फिलोसोफर्स थे ग्रीक के, इनको मैटर के बारे में अपनी अपनी फिलोसफी थी. उन्होंने एटम्स नाम का वर्ड दे दिया था. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वर्ड टू वैलिडेट दीज आइडिया. अभी भी एक्सपेरिमेंट होने बाकी थे. हम कुछ भी कह सकते हैं किसी चीज के बारे में, बट अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो वो तब तक प्रूफ नहीं होता. थ्योरी अलग चीज होती है. थ्योरी सिर्फ बुक्स में और स्टेटमेंट्स के फॉर्म में होती है, बट थ्योरी को प्रूव किया जाता है एक्सपेरिमेंट करके. अगर हमारी बात कही हुई ठीक निकलती है तो फिर वो साइंटिफिक फैक्ट बनता है, अदरवाइज वो थ्योरी ही रहती है. तो हमें क्या करना पड़ता है? एक्सपेरिमेंटल वर्क से वैलिडेट करना पड़ता है इन आइडियाज को. तो एटम के बारे में जो आइडिया था, मैटर के बारे में जो आइडिया था, वो अभी वैलिडेट होना बाकी था. इज इट क्लियर?
Is it clear to everyone? Next, आगे बढ़ो. Yes, ma'am. Next, other student. यस मैम. By the end of 18th century, इसे पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो. By the end of the 18th century, scientists recognized between By the end of the 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they ओके, सो 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते रिकॉग्नाइज किया गया एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस, और नेचुरली इंटरेस्टेड हो गए साइंटिस्ट ये पता करने में कि एलिमेंट्स कंबाइन क्यों होते हैं और क्या होता है जब वो कंबाइन होते हैं. तो ठीक है, सबको पता है नेचर में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं. तो जब कंबाइन होते हैं तो उसका रीजन निकालना ढूंढने लग गए, एक्सपेरिमेंट करने लग गए लोग कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं एंड क्या होता है जब वो कंबाइन होते हैं. अब उस नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम दे रखा है एंटनी एल लेविओसर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस बाय एस्टैब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. मतलब एंटनी एल लेविओसर ने केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ दिए हैं, जो कि 2 लॉज हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ मास और एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, 2 लॉज हैं. क्लियर? ये एंटनी एल लेविओसर ने दिया है ये दोनों लॉज केमिकल कॉम्बिनेशन के. आपने लिखा भी है, 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट करा दिया था तब ये लॉज मैंने लिखवाए थे आपको, और इसका एक एक्सपेरिमेंट भी कर रखा है ये वाला हमने, जो कॉपर सल्फेट और सोडियम बेरियम क्लोराइड वाला, जो सॉरी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला जो था ये हमने कर रखा है. लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हाँ, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था, एंड केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में भी हमने देखा था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में भी हमने देखा था. 3.1 पढ़ना है आपको. एनी वन ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ लिया, उसके अलावा कोई जो बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहाँ से पढ़ो 3.1 से. ये इसीलिए पढ़ा रहे हैं बिकॉज एनसीईआरटी के बीच बीच में से ही आपके एमसीक्यू आने वाले हैं. अगर आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे तो यू विल लूज योर एमसीक्यू. ठीक है, read it. Any one of the student read it. That's this paragraph 3.1. Yes, read it बेटा. कितनी देर में बोलो. लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन बोलो, पढ़ो इसे. रीड इट, यहां से पढ़ना है आपको 3.1. एनी स्टूडेंट कैन रीड. अग्रिम, अभिषेक चौधरी, अंशिका मलिक, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है इसको. पढ़िए. कैन आई? यस, रीड इट. बहुत लेट करते हो बेटा आप लोग, बहुत लेट करते हो पढ़ने में. इतना मेरे को बोलना पड़ रहा है बार बार आपको. Laws of chemical combination. The following 2 laws of chemical combination were established after much experimentations by Lavoisier and Joseph L. Proust. Okay. First is law of conservation of mass. Yes. Now I have to read activity also. Yes, read it. Okay, ma'am. Activity 3.1. First point. Take one of the following sets X and Y of chemicals. Copper sulfate 1.25 gram, sodium carbonate 1.43 gram. Second, barium chloride 1.22 gram, sodium sulfate 1.53 gram. Third is lead nitrate 2.07 gram, sodium chloride 1.17 gram. Second point, prepare separately a 5% solution of any one pair of substances listed under X and Y, each in 10 milliliter in water. Take a little amount of solution of Y in a conical flask and some solution of X in an ignition tube. Hang the ignition tube in the flask carefully. See that the solutions do not get mixed. Put a cork on the flask
See figure point 3.1. सो आपने एक्टिविटी पढ़ ली एंड इसमें देयर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन. देयर इज अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कह रहा है कि पूछ रहा है आपसे, इज देयर एनी चेंज, क्या कोई चेंज होता है? केमिकल चेंज जब होता है तब उसके मास में कभी कोई चेंज होता है कि नहीं होता? यानी कि केमिकल रिएक्शंस कुछ कभी भी हो, मतलब कोई भी ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, ए तरह का जो कंपाउंड है वो बी से रिएक्ट कर रहा है और वो दो कंपाउंड बना रहा है C प्लस डी. तो ये बोल रहा है ये क्वेश्चन ये पुट अप हो रहा है कि क्या is there a change in mass when a chemical change take place? कोई ठीक है. Now we will be looking at ये एक्टिविटी दे रखी है. टेक वन ऑफ द केमिकल सेट X सेट को Y सेट से रिएक्ट करवा के देखना है और इन सभी रिएक्शंस में एक को आप कोनिकल फ्लास्क के अंदर लोगे, एक को आप हैंग्ड टेस्ट ट्यूब में लोगे. ठीक है. सॉल्यूशन ऑफ X विल बी इन द हैंग टेस्ट ट्यूब जो कि कोनिकल फ्लास्क में थ्रेड से बांध रखी है. उसमें आपका X सब्सटेंस रहेगा. X की लिस्ट की जो है एक एक करके करना है. कॉपर सल्फेट अगर आपने लिया फर्स्ट वाला X के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उसके जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग आप सोडियम कार्बोनेट लोगे कोनिकल फ्लास्क के अंदर. सॉल्यूशन ऑफ Y इन द कोनिकल फ्लास्क एंड सॉल्यूशन ऑफ X इन द स्मॉल टेस्ट ट्यूब. ऐसे आपको लेना है. कॉक टाइट से बंद कर देनी है एंड देन आपको ये कोनिकल फ्लास्क के कंटेंट्स को मिक्स कर देना. अंदर ही अंदर ये रिएक्शन करवाने के लिए दोनों चीजें आप मिक्स कर दोगे. ठीक है. तो उससे क्या होगा, ये प्रोडक्ट बना लेंगे. द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, जैसे कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर लेगा. ठीक है. एंड देन सोडियम सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा. जब ये बन जाएगा तो हम क्या देखेंगे, क्या पाते हैं इसको, कि जब हमने इसको मिक्स नहीं किया था उससे पहले का जो वजन होता है और उसके बाद जब हमने मिक्स कर दिया था नया सब्सटेंस बना, तो उसके बाद का जो वजन होता है दोनों का बराबर आता है. इफ वी गेट अ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और द इक्वल रिएक्टेंट्स. यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड को लोगे आप जब X में, X वाले में अगर आप बेरियम क्लोराइड को लोगे छोटी टेस्ट ट्यूब में अंदर और सोडियम सल्फेट को आप कोनिकल फ्लास्क में लोगे नीचे सॉल्यूशन के फॉर्म में, और जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा, देन आल्सो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. तो दोनों का जो वजन होगा वो सेम होगा, पहले और बाद के रिएक्शन का वजन सेम आएगा. टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Y इन कोनिकल फ्लास्क and some solution X in ignition tube, and the ignition tube in the flask. Carefully see the solutions do not get mixed. Put a cork on the flask